ओके सो बेटा टॉपिक अंडर डिस्कशन इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आज हम कंपैरिजन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स द टॉपिक इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स transition elements and the concept under discussion is comparison of physical properties comparison of physical properties of transition elements versus S block elements. Transition elements and S block elements. Okay. So बेटा पहले अगर हम बात करें हार्डनेस की तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड. ओके. लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट दैट हार्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. So transition elements are hard metals and S block elements are soft metals, or you can say not that hard as transition elements. और बेटा इसकी रीजन जो है वो है ग्रेटर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ग्रेटर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड एंड वाइस वर्सा हियर. The metallic bond strength is not that hard in S block elements. But the next thing is high melting point. The transition elements have high melting point, and the S block elements have relatively less melting point, relatively low melting point. मतलब S block elements का melting point is not that high as transition elements का melting point. The reason is same, beta. High melting point in metals is because of strong metallic bond strength or greater metallic bond strength. Greater metallic bond strength. Bond strength in transition metals. Why beta? Transition elements have greater metallic bond strength because d subshell electrons are also delocalized. D subshell electrons also delocalized. And you know metallic bond strength depends on delocalized electrons. So number of delocalized electrons are more in transition elements compared to S block elements. So D subshell electrons also delocalized. So more delocalized electrons cause greater metallic bond strength, which cause high melting point, and vice versa for S block elements. Okay, and the third thing is beta transition elements have higher density. So higher density and S block elements have low density beta. So what could be the reason? So the reason is that mass is greater for transition element and size is lesser, or you know that density is mass over volume. So what happens in transition elements? We have greater mass to the size compared to radius. Mass is greater in transition element. So greater mass to the size ratio for transition atoms or for transition elements. That is the reason that density is greater in transition elements, and it's vice versa for
non-transitional elements. Okay, so beta, these are the comparison in properties between transition elements and S block elements. So you may receive a 2 या 1 या 3 marks question for this comparison. ठीक है, तो पेपर में बेटा ये ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि आपको बोलें कि कैल्शियम और आयरन की प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करें। ठीक है, तो आप इसी तरह कंपैरिजन करें, बिकॉज कैल्शियम इज फ्रॉम एस ब्लॉक एंड आयरन इज फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, या कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट उठा के आपको दे देंगे और कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट दे देंगे पेपर में और बोलेंगे इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करो। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन यही होगा जो अभी आपके सामने है स्क्रीन पे। तो एग्जाम में आपको कह सकते हैं कि पोटेशियम एंड निकल की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें। तो पोटेशियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट एंड निकल इज डी ब्लॉक एलिमेंट। द सेम कंपैरिजन यू विल ड्रॉ जो हमने अभी डिस्कस किया है, राइट? ओके बेटा, आप लोगों ने लिख लिया ये? आई कैन शेयर दिस स्क्रीन। ये जो नोट्स हैं ये मैं शेयर कर लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे ही क्लास एंड होगी। ओके, so but the next thing is very technical thing and very important concept, ligand. Okay, so now what is ligand, beta? Ligand is a particle which has lone pair and can make dative bond. Definition. So एक mark की definition can be asked for ligand. So what is ligand, beta? Ligand is a particle or a species which has lone electron pair, which has lone electron pair and can make date bond and can make date bond। तो जो पार्टिकल है जिसमें लोन पेयर है and can make date bond with central metal ion। अभी मैं बताता हूँ बेटा कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है। I'll explain in a while what is central metal ion। Okay, just keep in mind कि what are ligands? Ligands are those particles which have lone electron pairs and then they can make date bond। For example, beta chloride। So we will say this is chloroligand because it has a lone pair। This chloride has a lone pair and it can make date bond। ये ऐसे date bond एक बना सकता है। ओके, इसी तरह OH नेगेटिव इज अ सर पार्ट। जी बेटा। सर लोन पेयर मोर देन वन हो सकता है? जी, लोन पेयर मोर देन वन हो सकता है, लेकिन एक एटम के पास अगर ज्यादा लोन पेयर हैं वो कंट्रीब्यूट एक लोन पेयर ही करेगा, बनाएगा एक डेटे बॉन्ड ही, भले जितने भी लोन पेयर ओके हों। सर। ओके, ये अब एक ही डेटे बॉन्ड बनाएगा। क्लोरोलिगेंट इसे कहते हैं। दो के इसके पास लोन पेयर 3 हैं, लेकिन ये बॉन्ड एक ही डेटे बॉन्ड बनाएगा। तो एक एक डेटे बॉन्ड पर एटम बनेगा। ठीक है, रूल क्या है? 1 डेटे बॉन्ड पर एटम आएगा। 1 डेटे बॉन्ड पर एटम बनेगा। ठीक है, मैं दूसरी एग्जांपल दूं बेटा, ये CN, इसमें कार्बन का लोन पेयर यूज होगा और डेटे बॉन्ड बनेगा। एंड H2O, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर बेटा यूज होगा। इसी तरह अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज होगा और डेटे बॉन्ड बनेगा। तो बेटा ये देखें, जो पहले 3 लिगेंड्स हैं ना, ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, चार्ज लिगेंड्स हैं। और बेटा जो आखिरी 2 हैं वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उन पे चार्ज नहीं है। लास्ट 2 आर न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब बेटा मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्टिकल है और उसमें लोन पेयर है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा?
ये जैसे OH एक पार्टिकल है और इसमें लोन पेयर है, तो व्हाट इज दिस? न्यूक्लियोफाइल। हाँ, जिसमें जिस भी पार्टिकल में लोन पेयर हो उसकी 3 आइडेंटिटीज होंगी, वो कैन बी यूज एज अ 3 थिंग्स। तो वन ऑफ द थिंग इट कैन बी यूज एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेटा यू रिमेम्बर, न्यूक्लियोफाइल को भी हम डिफाइन करते थे a particle with lone electron pair. So a particle with lone pair can be used as a nucleophile, या फिर it can be used as a ligand, और या फिर it can be used as a जी बेटा, anyone in the class? एज अ बेस। As a base, शाबाश बेटा, ये ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस होगा, क्योंकि जिसमें भी लोन पेयर है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। जिस पार्टिकल में लोन पेयर होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ओके, क्योंकि प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो लिगेंड जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होंगे, न्यूक्लियोफाइल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बेस जहां भी लोन पेयर हो और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, दैट विल बी बेस, राइट? तो दिस दिस इज व्हाट बेटा लिगेंड्स की डिटेल थी। अब लिगेंड्स में बेटा ये वाले जो लिगेंड्स हैं, ये सारे जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, इनको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इनको बेटा हम क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि दीज लिगेंड्स फॉर्म्स ओनली वन डेटिव बॉन्ड। मोनो मींस वन, ठीक है? तो मोनोडेंटेट लिगेंड मींस के दे कैन मेक ओनली वन डेटिव बॉन्ड। तो इन एग्जाम बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन करें मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड को बेटा आप डिफाइन करोगे कि a particle which can make only one dative bond, okay, and it will have one mark definition. So a particle which can make one dative bond, one dative bond using one lone electron pair, one lone electron pair, okay। अच्छा बेटा, अब इसकी मोनोडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है कि व्हाट दीज लिगेंड्स आर। क्लोरो लिगेंड इज मोनोडेंटेट लिगेंड, ओके। इसको हाइड्रोक्सी लिगेंड कहते हैं, नेक्स्ट वाले को, OH को। खैर इन नेम्स याद होना जरूरी नहीं है। हाइड्रोक्सी लिगेंड्स OH है जिसमें लोन पेयर है, ये सयानो लिगेंड इसे कहते हैं, CN को। नेम याद करना जरूरी नहीं है, ओके। बस ये पता हो कि ये 3 नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, और फिर H2O न्यूट्रल लिगेंड है, और अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन है ये मोनोडेंटेट सारे, मतलब एक डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। और बेटा फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बायडेंटेट लिगेंड। बायडेंटेट लिगेंड। अब बाय का मतलब है टू, और डेंटेट बेटा लैटिन वर्ड है। डेंटेट लैटिन में कहते हैं जॉ को, क्योंकि लिगेंड ने जाके अटैच होना होता है, तो इस अटैचमेंट के लिए डेंटेट का वर्ड यूज करते हैं। बायडेंटेट लिगेंड जैसे नाम से पता चल रहा है, ये 2 डेटिव बॉन्ड बनाएगा। अ पार्टिकल which makes 2 dative bonds, which makes 2 dative bond using 2 lone pairs, okay, so that particle will be named as bidentate ligand। आप जरा गौर से सुने, बायोडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल्स क्या हैं। बायोडेंटेट लिगेंड्स की बेटा आई विल सजेस्ट कि आप मेमोराइज करें। ये 2 एग्जांपल्स हैं, इन्हें तो मेमोराइज करें। OX2-, दिस इज बायोडेंटेट लिगेंड, ओके। So OX2-
ये है क्या बेटा, ये है एथन डाइओएट आयन। बेटा यू रिमेम्बर दिस थिंग, व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज एथन डाइओइक एसिड। ओके, दिस मॉलिक्यूल इज एथन डाइओइक एसिड। अब अगर ये एथन डाइओइक एसिड डिसोसिएट हो जाए लाइक दिस, डिसोसिएशन में एच रिमूव हो जाएगा, तो ये जो O है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और इस O पे लोन पेयर है, और इस O पे भी लोन पेयर है। तो इसको हम बोलेंगे एथन डाइओएट आयन। ओके, एंड दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि ये वाला जो एटम है ना, वो एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा यूजिंग दिस लोन पेयर, और दूसरा एटम, ये वाला जो राइट वाला ऑक्सीजन है, ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा आप देखें गौर से कि वन डेटिव बॉन्ड पर एटम ही है, वन डेटिव बॉन्ड पर एटम ही है, पर एटम ही है। लेकिन इस केस में दो एटम्स ऐसे हैं जिन पे लोन पेयर हैं, तो दो डिफरेंट ऑक्सीजन एटम्स डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, तो पूरा जो पार्टिकल है वो दो डेटिव बॉन्ड शो करेगा, इसलिए ये बाइडेंटेट लिगेंड है। एनी कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर। ओके, सो बेटा जस्ट मेमोराइज दिस एथन डाइओएट आयन, इसको OX2 कहते हैं। ओके, ये पुराना इसका नेम था ऑक्जेलेट आयन, तो उससे ये OX निकाला हुआ। तो खैर आप ऑक्जेलेट आयन याद मत करें, लेकिन बस ये पता हो कि OX2 इस बाइडेंटेट लिगेंड को शो करेगा। बेटा दूसरा जो बाइडेंटेट लिगेंड है उससे हम EN से शो करते हैं। EN इज डाई एमाइन। देखो एमाइन इज NH2 ना, यू नो दिस थिंग, और ये इथेन डाई एमाइन है, राइट, इथेन डाई एमाइन है, इथेन डाई एमाइन। तो यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है विच कैन बी यूज टू मेक डेटेड बॉन्ड, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इट कैन बी यूज टू मेक डेटेड बॉन्ड। तो इसलिए आप देखें ये बाइडेंटेट लिगेंड है, पर एटम तो एक डेटेड बॉन्ड बनेगा लेकिन पूरा मॉलिक्यूल दो डेटेड बॉन्ड बनाएगा। तो ये दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं जो आई सजेस्ट कि आप मेमोराइज करें, राइट। और इसमें ये ध्यान में रखें कि जो OX है वो डाई नेगेटिव है, दिस वन इज डाई नेगेटिव, जबकि EN इज न्यूट्रल, EN is neutral bidentate ligand and OX is di-negative. And better just for the sake of definition, polydentate ligand की एग्जाम्पल सिलेबस में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन डेफिनेशन आप बताएं बेटा क्या होनी चाहिए। जैसे हमने कहा मोनोडेंटेट लिगेंड एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेट तो लिगेंड जो टू और मोर बनाएगा। टू डेटिव बॉन्ड बनाने वाला इज बाइडेंटेट सर लिगेंड। टू और मोर सर। हाँ, मोर देन टू डेटिव बॉन्ड जो बनाए दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। So a particle that makes more than two dative bond is polydentate ligand. A particle which makes more than two dative bonds, more than two dative bonds. तो इसकी एग्जाम्पल बेटा नहीं है। So बेटा this is how the definitions are. बेटा उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन।
बेटा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आयन, फॉर एग्जांपल बेटा, इफ आई से ये Fe है, ठीक है, और ये Fe3 पॉजिटिव है, राइट, और इस Fe में, Fe3 पॉजिटिव में वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जहां लिगेंड्स आके डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स से ये क्लोरो लिगेंड है, इसके पास लोन पेयर है, एंड इट कैन मेक अ डेटिव बॉन्ड विद दिस सेंट्रल मेटल आयन। और एक दूसरा क्लोरो लिगेंड है विच कैन मेक डेटिव बॉन्ड विद द सेम सेंट्रल मेटल आयन। तो बेटा इस केस में लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयंस के साथ डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड है या रिजल्टिंग आयन है, उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। एनी कंफ्यूजन बेटा? नहीं सर। देखो, अगर हम आयरन को लें, आयरन प्रोटॉन नंबर इज 26, तो configuration for iron is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 3, then 4s, and then 3d। तो 4s में इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे, विच इज 20 हो जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन 3d में प्लेस करेंगे। ओके, लेकिन अब अगर हम देखें Fe3 प्लस को, Fe3 प्लस विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एंड 3d5। ठीक है, अब 3d5 के बाद 4s को देखें तो 4s वेकेंट है, 4s जीरो होगा, 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। और फिर 4p को देखें तो 4p में भी इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए हैं, 4p भी वेकेंट है। तो अब मैं 4s को बेटा विल बी लाइक दिस, एंड 4p विल बी लाइक दिस। तो देखो ये वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो अब अगर लिगेंड्स आए, तो लिगेंड्स अपने लोन पेयर से, जैसे ये क्लोरो लिगेंड था, तो इस वेकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड कैन मेक डेटिव बॉन्ड। ठीक है, दूसरा लिगेंड ये आ जाएगा बेटा, और ये लिगेंड कैन मेक डेटिव बॉन्ड हियर इन दिस वेकेंट ऑर्बिटल। तो मतलब ये ऊपर डायग्राम देखें, जो क्लोरो लिगेंड्स हैं वो डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड्स डेटिव बॉन्ड बना लें, इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स को कैसे बेटा डिफाइन करेंगे? कि when ligands so complex, yeah, complex ion when ligands are attached to central metal ion through dative bonding, through dative bonding, राइट। तो बेटा इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो, जो एग्जाम्पल मैंने ली थी, मैंने क्या कहा कि ये क्लोरोलिगेंड है, और ये अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व करके डेटिव बॉन्ड बना रहा है आयरन 3 के साथ। ठीक है, तो ये आयरन 3 सेंट्रल में है, और इसके अराउंड लिगेंड्स हैं, और लिगेंड्स क्या कर रहे हैं बेटा? सेंट्रल मेटल आयन के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। अच्छा, अब बेटा इसमें चार्जेस जो है ना, वो इस तरह नहीं लिखते जैसे मैंने लिखे हुए हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। तो आप बता सकते हो नेट चार्ज क्या होगा? कैन यू टेल मी बेटा कि सर व्हाट वन इज? प्लस हाँ, नेट चार्ज इज 1+। डज मेक सेंस बेटा? क्योंकि माइनस चार्ज 2 है और प्लस चार्ज 3 है।
तो नेट चार्ज इज +1। तो हम कॉम्प्लेक्स को यूं शो करेंगे, लिगेंड्स पे हम चार्ज नहीं शो करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन पे भी हम चार्ज शो नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो रिजल्टिंग चार्ज है वो शो करेंगे, लाइक दिस। गॉट इट? सर जी। सेंट्रल एटम कोई भी मेटल हो सकता है। सेंट्रल एटम कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। ओके। ओके। अच्छा बेटा, एक और चीज है जो आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कहते हैं कि सेंट्रल आयन के अराउंड जितने डेटे बॉन्ड्स हों उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स का? इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। बेटा 2 क्यों है? क्योंकि दो डेटे बॉन्ड्स हैं। ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड जितने डेटे बॉन्ड्स हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, राइट? So this will be the number of data bonds, the number of data bonds around central metal ion. Okay, and then बेटा ये चार्ज वाली डिस्कशन जो हमने की, तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो चार्ज बेटा कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या होगा? तो लिगेंड्स का, जैसे ये देखो चार्ज जो मैंने यहाँ पे वर्किंग की हुई है, या बेटा देखें जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो जो सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज है और जो लिगेंड्स का चार्ज है उनका सम इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो सम ऑफ द चार्ज ऑन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन, मेटल आयन इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो बेटा बस यही हमारी आज की डिस्कशन थी, इतना ही मैंने पढ़ाना था। अगर फेस टू फेस होती तो तब भी हम यहाँ तक पढ़ते, राइट? अब कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स की शेप्स कैसी हैं, वो हमारी अगली डिस्कशन होगी।